Now the next chapter, you are left with one chapter, My Childhood, and the second one is a poem, that's a Legend of Northland. अगर हम मतलब personally if I say this chapter is very close to me, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये chapter. The reason is I have always admired Dr. APJ Abdul Kalam as a, I can say, an inspiration to me. And this is not because I'm teaching you, this is reality. This is reality. मतलब मैंने, my husband has met him a couple of time, and जैसे वो बताते थे, अभी तो he became the president of India in the later years. हम उनको तब जानते थे when he was a scientist, he was working with the science, मतलब कि वहाँ पे जब वो काम करते थे अपने research में तब. And of course I have heard many stories about him being a humble person. मेरे लिए science or maths is not an important thing. Means as a teacher, yes, I always insist on all the subjects, but I don't say that somebody is very good because the person is a scientist, the person is a mathematician. और मेरे लिए वो इंसान अगर टीचर है, अगर उस इंसान ने अपनी लाइफ में हम्बल मतलब नेचर को फॉलो किया है, दैट ऑलवेज इंस्पायर्स मी, चाहे वो कोई भी क्यों ना रहा हो. अगर आपके पास एक पावर आ गया, आपके पास पैसा आ गया और उसके बाद आप एटीट्यूड दिखाओ, देन दैट डजंट हैव एनी रेलेवेंस. एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है, ही वॉज अ पर्सन हु हैड रियली फॉलोड religiously everything what we study about him in any book. Even when he was living in the president estate, मतलब अगर हम मतलब किसी को राष्ट्रपति भवन में जाकर रहने का अगर टाइम मिले तो वो इंसान सोचो क्या क्या कर सकता, बट ही नेवर मिसयूज दोज पावर्स. He had a simple lifestyle. Morning में he used to take simple breakfast and simple lunch. He did not use any of the things that were, that we can say lavish. तो this really makes difference. ये जो है बहुत different हो जाता है हमारे लिए if we talk about these मतलब कि skills. He was when he was a scientist, so he used to stay near नीति बाग, गुलमोहर पार्क के पास रहते थे, मतलब वहाँ पर. तो he used to go for morning walks. मेरे हस्बैंड के जो मतलब कि हस्बैंड्स बॉस, he is there. तो they used to go for the walk. तो once or twice my husband when visited their house, so he was also there. So he used to be very humble because we are also Tamilian, so he would speak in a very humble manner. He never had that attitude that I'm something. In fact, बाद में तो he was the one who had even assisted India for the nuclear fission also. And even in 1974 when हमारे इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर मतलब कि वेपन का हम लोगों ने, जो when we had given this the world the answer, at that time also he was assisting in that office. उसके बावजूद भी उन्होंने कभी इस चीज का जो है घमंड नहीं किया था. जो आपका जो चैप्टर है दैट इज माय चाइल्डहुड, इट इज फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी ओनली, in which he has spoken about how he had a very simple childhood because he belonged to a family जहाँ पर उसके फादर जो थे उनका अपने बोट होते थे. There are some misconceptions that we read कि वो मछुआरों की फैमिली को बिलोंग करते थे एंड ये उनकी जो फैमिली थी वो बोट्स मतलब चलाती थी. एंड रामेश्वरम which is one of the religious town of southern India. It is हमारे मतलब कि जो ग्रंथ है, अगर आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछेंगे तो they will tell that रामेश्वरम जाना it's a really मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है. वहाँ पर
वी हैव द फंक्शन ऑफ सीता राम मैरिज सेरेमनी। तो वो जो राम जी के और जो सीता जी के जो आइडल्स होते हैं, मूर्ति होती है, वो इनके ही घर वालों को, मतलब दे हैड द कॉन्ट्रैक्ट कि वो लोग ले जाते थे टूवर्ड्स दैट प्लेस जहां वो फंक्शन होता था। यानी कि इवन बीइंग मुस्लिम्स दे वर एंगेज्ड इन दिस काइंड ऑफ। सो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। आपके पेपर में एमसीक्यूज में these can come in your term 1, right? And later on, as I said, APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, he also became the 11th president in 2002. So these are all important for your MCQs, right? That which, मतलब कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन से ईयर में बने थे वो, ये सारा आपके पेपर में आ सकता है। In this particular chapter, he talks about his childhood experiences. He is not talking about how he entered into the lines of physics, or he is not talking about, this particular chapter is completely about the social cultural norms that we follow in our country. लेकिन हम लोगों के दिमाग में बैठाया जाता है कि Muslims are bad। तो नेचुरल है कि जब हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है तो वी डू नॉट हैव, और ब्राह्मण्स के अंदर ये भी बोला जाता है यू शुड नॉट सिट विद देम ड्यू टू द कास्ट फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, एंड ही आल्सो फेस्ड ऑल दोस डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने भी उन डिस्क्रिमिनेशंस को फेस किया था, बट he did not allow those discrimination to hover on him। और दूसरी बात क्या थी, उनका जो ये डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ था, तो उनके जो टीचर्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। दिस ऑल्सो फोकसेस ऑन द रोल ऑफ अ टीचर इन रिमूविंग द डिफरेंसेस दैट ऑफन इरप्ट इन द क्लासरूम। मैंने भी बहुत मतलब कि देखा है, कई बार क्लास के अंदर ऐसा भी होता था, हम लोगों को ऐसी चीज़ें पढ़ानी पड़ती थी जब मतलब कि वी आर टेलिंग समथिंग कि ये रॉन्ग है, एंड उस वक्त में क्लास के अंदर आई यूज टू हैव द मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी उन बच्चों के सामने ये बात बोलना। लाइक वी हैड 1 or 2 चैप्टर्स, आई डोंट रिमेंबर, इन 10th स्टैंडर्ड, तो वहाँ हमें बताना पड़ता था, एंड डेफिनेटली वो मतलब बच्चे बेचारे देखते थे, एंड बाकी बच्चे उनकी तरफ देखते थे, यार ये मुस्लिम्स है। Religious differences are always there, but as a book, as a teacher, we should not make any difference. I had a very beautiful student called उसका नाम, मेरे पास 6 बच्चे थे, साहिल करके था, एंड उसका जो ब्रदर था रोहान, ही वॉज सो गुड। जब उनके यहाँ पर ईद की फंक्शंस होते थे तो ही वुड टेल मी कि मैम हमारे यहाँ पर ईद, एंड ही वुड स्पेशली ब्रिंग खीर फॉर मी, एंड इन एनी मैनर उसने अपना जो फेसबुक की आईडी और इंस्टाग्राम की जो आईडी थी उस पर भी उसने लिखा हुआ था साहिल हिंदुस्तानी। एंड समटाइम्स व्हेन ही विल बी हियरिंग दैट आई डोंट नो इन विच स्कूल देयर वाज, मतलब टीचर ने डिफरेंस किया था, and they said that you belong to this Islam, तो तुम जो हो you will be a terrorist। He cried like anything, he cried like anything। वो बहुत रोया कि मैम हमारे टीचर ने हमें ऐसा क्यों बोला। तो this also tells about the role of teachers। God ने पता नहीं हमें डिफरेंट बनाया नहीं, बट हम लोगों ने खुद ये डिफरेंसेस क्रिएट कर लिए हैं। वी डोंट नो हाउ द रिलीजन स्टार्टेड। यस, आई एम अ फॉलोअर ऑफ हिंदू डेफिनेटली, बट दैट डजंट मीन आई शुड इंसल्ट अदर्स। और ये इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हाउ अ गुड टीचर हैड imbibed those qualities in
अब्दुल कलाम। उनके फादर, उनकी मदर, उनका जो रोल है वो भी इसमें बताया गया है। सो दिस चैप्टर ओनली डील्स अबाउट द सोशल कंडीशंस दैट ही हैड फेस्ड इन द चाइल्डहुड एंड हाउ ही हैड अ हेल्दी चाइल्डहुड। अब हम हेल्दी चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? जिसमें हम खा पी रहे हैं? नो। हेल्दी मीन्स व्हेन वी गेट लॉट्स ऑफ लव, अफेक्शन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसको हम हेल्दी चाइल्डहुड बोलते हैं। चाइल्डहुड that's called as healthy childhood. I can say that yes, some children face lots of trauma in their childhood, but that should not be there. Now let us start with the chapter with NCERT. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram, because Rameshwaram is a coastal town and it is very famous for the शिवलिंग विच इज़ वन ऑफ द हमारे जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। एंड इट इज़ सेड दैट व्हेन भगवान मतलब कि व्हेन श्री लॉर्ड श्री राम जो है व्हेन ही वाज सपोज टू गो टू श्रीलंका फॉर गेटिंग माता सीता, उस वक्त में उन्होंने वहाँ पर इसकी स्थापना की थी। एंड वी ऑल्सो हैव दैट स्मॉल स्टोन्स, मैंने देखे हुए हैं, कहते हैं कि वो स्टोन्स जो है वो पानी में तैरते हैं। एंड दीज वर सम ऑफ द स्टोन्स विच वर यूज टू बिल्ड द राम सेतु जो बना था उस वक्त में, उसके लिए यूज हुआ था। देयर इज अ स्मॉल टेम्पल देयर। आई हैड गॉन ईयर्स बैक, इनफैक्ट आई हैड गॉन ईयर्स बैक। तो उस वहाँ पर वो टाउन मतलब कि हैं जो स्क्विरल हैं उनके कैसे मतलब कि उनके जो हाथ मतलब उन पे 4 उंगलियों के निशान आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, दीज थिंग्स आर told here and it is very very near to Sri Lanka. And my mom tells that there was a time जब श्रीलंका को सिलोन बोला जाता था and people used to swim across the shore to that particular area and they would be getting the things from there. But अभी तो वो there is मतलब कि बाउंड्री वगैरह है, मतलब water boundaries are there, so now we have. But if you go there तो यू विल फाइंड द ब्यूटिफुल सी। एंड ऑल्सो रामेश्वरम के अंदर आपका जो एक ब्रिज है, पंबन ब्रिज, विच इज वर्ल्ड का बहुत फेमस ब्रिज है, विच विल क्लोज व्हेन द ट्रेन कम्स, और उसके ऊपर से ट्रेन निकल जाती है एंड इट ओपन्स व्हेन द शिप गोस, और मतलब कि दैट इज ऑल्सो बिल्ट ओवर देयर। सो दैट इज आपका रामेश्वरम। माई फादर, और एज टू वाइल का मतलब होता बेटा पहले, बिफोर, पहले हम उसको मद्रास स्टेट बोलते थे। माई फादर जैनलुब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, मतलब वो ज्यादा रिच नहीं थे, ना ही उनके फादर बहुत पढ़े लिखे थे। ही पॉजेस ग्रेट इन्नेट, इन्नेट मतलब इंटरनल, अंदर something, wisdom and true generosity of spirit. As I said, he was very generous. He had an ideal helpmate in my mother Ashi Amma. मतलब उनकी ideal helpmate means wife who helped her. I'm joining in 1 minute.
I do not recall the sorry. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all members of our own family put together. This shows that she was very generous, she had the hospitality, मेहमान नवाजी, तभी उनके घर में कोई ना कोई आता रहता था. I was one of, मतलब ये जो this one tells that he was so humble. A short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. उनका मानना है कि he was an ordinary kind of person, मतलब उनकी जो looks है वो ordinary थे, जबकि उनके parents काफ़ी smart थे. We lived in our ancestral means that which belongs to the grandfathers and others, which was built in the middle of 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick. उस ज़माने में वो बड़े बड़े limestones होते थे, उनसे बनता था घर. It was on the Moss Street in Rameshwaram. My austere father, austere means a person who is very strict and severe. Means austerity होता है, बहुत strict punishment देते हैं. Used to avoid all inessential comforts and luxuries. मतलब वो फालतू का खर्चा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, but yes, खाना है, मेडिसिन है, क्लोथ्स है, जो ज़रूरी है, that would be there. I would say, ये पेपर में आ सकता है, mine was a very secure childhood both materially and emotionally. Means materially मतलब सामान, materialistic means सामान, food, clothes, सब कुछ मिलता था, and emotionally means love, affection. Means he had a healthy childhood. Now, the Second World War broke around in 1939. When I was 8 years old, means he was born in 1931, you can see. For reasons I have never been able to understand, वो कहते हैं हमें मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ था कि sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Tamarind means इमली, और उसके जो seeds होते हैं वो normally पहले ज़माने में क्या होता था, instead of the bullets वगैरह के लिए use किया जाता था, मतलब वो जैसे वो use करते हैं ना, using the. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on mosque. A day's collection would fetch me a princely sum of 1 आना. 1 आना is around आपका 6 पैसे. 6 पैसे को हम 1 आना कहते हैं. उस ज़माने में 1 आना was very very big amount. 4 आना मतलब 25 पैसे और 8 आना मतलब 50 पैसा, और इसीलिए हम बोलते हैं 16 आने यानी कि 1 रुपी. So he used to collect that. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinamani is a newspaper. Dinamani is a newspaper. He was also fond of reading the newspaper. Our area being isolated, मतलब जहाँ वो रहते थे वो थोड़ा अलग था, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the allied forces, that is UK, US and Russia के साथ, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन के अंडर था इसीलिए, and something like a state of emergency was declared. अब तब तक इनको नहीं पता था वॉर का मतलब क्या होता है, वॉर से कितनी नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे पहला इनको समझ आया when रामेश्वरम के में जो ट्रेन्स रुकते थे उनको सस्पेंड कर दिया गया कि कोई ट्रेन्स वहाँ नहीं रुकेंगी. एक्चुअल में तमिलनाडु या फिर जो आपके मेन एरियाज है मदुरई, वहाँ से न्यूज़पेपर्स आते थे टू रामेश्वरम, बिकॉज रामेश्वरम इज अ स्मॉल टेम्पल टाउन, उसको हम टेम्पल टाउन बोलते हैं. अभी तो वी आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ टूरिज्म, देन वी आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब इतना नहीं था, तो इनको न्यूज़पेपर नहीं मिलता था. तो हुआ क्या, द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड. मतलब दिस इज अ जंक्शन बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. धनुषकोडी इज अ प्लेस जहां पर आपका मेन, दिस इज फ्रॉम वेयर द पार्क स्ट्रेट टुवर्ड्स श्रीलंका गोस, जहां से भगवान ने
धनुष चढ़ाया था। एंड इनको न्यूज़पेपर जो है फेंक दिए जाते थे, एंड दे हैड टू गो एंड कलेक्ट एंड दे हैड टू गिव इट टू अदर्स. That was my cousin Samsuddin who distributed newspapers in Rameshwaram. वो मतलब कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर था. To look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. और इनको वो नौकरी मिल गई. That is why he says Samsuddin helped me earn my first wages. जो पहले उन्होंने किया था that was just like a pocket money, लेकिन ये उन्होंने regularly किया था. Half a century later, half a century means मतलब century कितना होता है 150 years later, I can still feel the surge मतलब surge of pride मतलब it's a मतलब कि फूलाना समाना, छाती से फूल जाना, छाती फूल जाना. In earning my own money for the first time, and that is really it really मतलब होता है जो पहली बार अपनी कमाई आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. What is the meaning of this? हर एक बच्चा, आप हो, मैं हूँ, हमारे अपने कुछ सोशल नॉर्म्स हैं. आपके घर की कंडीशंस कुछ होंगे, मेरे घर के कुछ कंडीशंस थे. मतलब कि मेरी जो मदर थी शी वॉज वेरी पर्टिकुलर. आई कैन से शी वॉज मतलब कि इफ आई यूज अ वर्ड स्ट्रिक्ट, वो मतलब कि इट्स वेरी लेस. वो आज भी उतनी स्ट्रिक्ट है जितनी वो तब थी. टिल डेट शी इज सो स्ट्रिक्ट. अगर उन्होंने बोल दिया ना उसके बाद आप कुछ नहीं बोल सकते. एंड शी वुड बी वेरी पर्टिकुलर दैट वी आर परफेक्ट. उन्होंने हमें हर चीज में एक नॉर्म दिए थे. एंड इकोनॉमिकली हम लोगों को बोला जाता था आप ऐसे यूज नहीं करोगे. वी वर नॉट सपोज टू यूज ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स दैट टुडे चिल्ड्रन यूज एंड थ्रो. मैंने देखा है बच्चों को. मेरी सिस्टर का मतलब हमारे घर के अंदर मेरी सिस्टर का बेटा वो ही डजंट केयर. हमारे घर में तो रफ नोटबुक में मम्मी पूछती थी रफ नोटबुक में से तुमने पेजेस तो नहीं फाड़े. वो पता है पेजेस में आप मानोगे नहीं, शी यूज टू राइट द नंबर 1 2 3 4 5 6. मतलब जैसे ही बुक पेज पेपर आते वो आते थे नोटबुक्स पे नंबर लिखने पड़ते थे हमें. हमारे स्कूल में भी था, मम्मी भी करवाती थी. सो वी वर नॉट सपोज टू टीयर द पेजेस लाइक दैट. We were brought in that environment. And emotional or with the some figure of authority, like in my house my mother was very authoritative. And every आपके घर में भी होगा, सबके घर में होगा. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness, deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. उनके 3 भाई और 1 बहन थी और इन सब ने जो है अपने मम्मी पापा से सच्चाई, अच्छाई, डिसिप्लिन इनको सीखा था. In his school days, he had 3 close friends, Ramananda Shastri, Arvindam, and Siva Prakashan. And these are all Brahmins. They all belong to the orthodox, मतलब जो पुराने टाइप के हैं, जो मतलब those who are old fashioned or old minded Brahmin families. You might have not come across, तो मैं आपको समझा भी नहीं सकती हूँ. मतलब वो छुआछूत, then caste, बहुत सारी चीजें वो देखते हैं. Because my father-in-law's family was very orthodox. very ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स में भी अगर मैं आपको अपनी कहानियां सुनाऊंगी ना तो आप कहोगे मैम सचमुच में आप ऐसा कुछ करते थे. अब दे वर वेरी पर्टिकुलर. लाइक आई कैन टेल यू, हमारे यहाँ पर एक देयर इज वन फंक्शन. उसमें क्या होता है, जैसे शादी होती है द मोमेंट यू गेट मैरिड, लोहा होता ना, लोहा, उसमें हमारे जो गुरुजी होते हैं उनका चिन्ह होता, सिंबल. और वो जो लोहा होता है उसे गरम सलाख पे रखते हैं और वो हाथों में यहाँ पे लगाना होता है टू से दैट यू आर अ ब्राह्मण. अब मेरी शादी हुई थी तो मैं तो बहुत छोटी थी मैं 19 साल की थी, ज़्यादा बड़ी थोड़ी थी. तो मैं तो भाई डर गई. मैंने कहा मैं तो नहीं लगाऊंगी. अब मेरे फादर इन लॉ हो गए गुस्सा. ही सेड कि ब्राह्मण की लड़की होते हुए तुम मतलब कि ये नहीं करोगी, ये तो हम तुम्हारे घर में आके खाना नहीं खाएंगे. अब मैं उन दिनों में तो मैं बहुत चुलबुली भी थी.
तो मैंने भी बड़े प्यार से बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, बेटा तो आपका है ना, अब शादी हुई है, मेरा नाम रमा राघवन होगा ना, रमा रामभद्रन थोड़ी है। अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी मर्जी, मैं तो नहीं लगाऊंगी। अब उनको लगा कि मैं वैसे मजाक कर रही हूँ। शादी के बाद उन्होंने गुरुजी के सामने बोलना। अब गुरुजी के सामने जाने का जो एक रूल था वो क्या था, आप पहले नहाओगे, नहाने के बाद आपको पतली सी साड़ी दी जाएगी, ब्लाउज नहीं दिया जाएगा। आप ब्लाउज नहीं पहनोगे, साड़ी को आप लपेटोगे, गीली साड़ी को, एंड गुरुजी आकर आपके यहाँ लगा देंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं लगवाती, मैं क्यों गुरुजी के सामने जाऊंगी ऐसे। एंड माय फादर इन लॉ सेड कितनी बदतमीज लड़की है, गुरुजी गुरुजी होते हैं। मैंने कहा तो है तो लड़का ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। एंड ही वॉज सो 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 अनॉयड, आप मान नहीं सकते हैं, वो इतने अनॉयड हुए। ही सेड कि ये तो मतलब कि शी इज, मतलब कि जबकि मैं बाकी सारी चीज़ों को मानती थी, बट मैं ऐसे इतना अंधविश्वास नहीं रखती थी। सो व्हेन स्टार्टिंग में तो हमारे घर आए ही नहीं, हम तो नहीं आएंगे आपके घर में, आके खाना नहीं खाएंगे, और फिर जब आते थे तो खुद ही खाना बना के अपने आप ही खाएंगे, दे विल नॉट अलाउ मी टू टच। एंड जब मैं वहां जाती थी चेन्नई, तो आपको पता वो क्या करते थे, जैसे घर में कोई फंक्शन है, जैसे कोई श्राद्ध है या फंक्शन है, मुझे जो है टॉयलेट में बंद कर देते थे, टॉयलेट में बंद करके ताला लगा के चल जाते थे, दैट आई शुड नॉट कम आउट, आई शुड नॉट सी दोज फंक्शंस। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे उन फंक्शंस में किसी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बाकी भाभियां सब जाएंगी, मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैंने वो नहीं लगाया था। और मैं उनसे पूछती थी कि मैं मन से प्योर हूँ, वो मतलब कि दैट इज नॉट देयर, आई एम अ टीचर, दे वुड से आई एम नॉट, तुमने वो नहीं लगाया ना तो यू विल नॉट कम। एंड फिर घर में जैसे पूजा होती थी तो पुजारी वगैरह जाने के बाद, सब घर में खाना खाने के बाद जो बचा होता था, दैट वॉज गिवन टू मी। वो इतने ऑर्थोडॉक्स थे। एंड when he died and I was the one who went, मेरे husband तो बाद में, they did not allow me to even come near the dead body। उन्होंने कहा तुमने वो नहीं लगा रखा। एंड आई वॉज मेड टू सिट आउटसाइड द हाउस, गांव के अंदर बाहर उन्होंने मुझे एक चेयर दिया, 2 चेयर दिया कि इसमें बैठ जाओ। मैं पूरी रात 12th May 2002 I was 2010 sorry, I was sitting outside the house पूरी रात। फिर जब दोपहर सुबह पंडित आए तो उन्होंने कहा तुम लोग पागल हो क्या, that doesn't ever matter, she is the daughter-in-law of this house and she has a complete right, ask her to come inside। तब मैं अंदर गई थी। that orthodox, so they are very, मतलब कि बट ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, this is one of the factor which always affects me। तो यहाँ हम लोग ऑर्थोडॉक्स इसलिए बात कर रहे हैं बेटा, नॉर्मली जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होते हैं ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि आप किससे बात करते हो, किससे बात नहीं करते हो, किस तरीके का खाना खाते हो, हाउ डू यू शेयर योर फूड, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing। बच्चों को क्या पता होता है। In fact, Ramanada Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the highest priest of Rameshwaram temple। मतलब वो तो टेम्पल के सबसे बड़े प्रीस्ट के बेटे भी थे। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father। मतलब उन्होंने तो उनके बाद उनके बेटे ने ही किया था। मतलब वो टेम्पल के प्रीस्ट होने का मतलब आप समझ सकते हो हाउ मच बिग इट इज। Arvindam went into the business of arranging ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रम्स, जो पिलग्रम्स आते थे उनको जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे। एंड शिव प्रकाशम बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवेज। मतलब जो आपके रेलवेज होते हैं उसमें आपको जो खाना मिलता है उसका केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला हुआ था। तो तीनों अलग अलग जगहों पे गए थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform that was carrying the idols of Lord, idols मतलब मूर्तियां, जो मूर्तियां होती हैं वो ले जाते थे। From the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house।
मतलब मंदिरों के बाहर वहाँ पॉन्ड बना होता, उसमें बीच में शादी मतलब वो फंक्शन होता था. Events from Ramayana and the life of the prophet were the bedtime stories my grandmother and mother would tell the children in our family. लेकिन ये लोग तो रामायणा इवन अपने जो मतलब कि अपने जो प्रॉफिट मतलब मोहम्मद प्रॉफिट जो है उनकी कहानियों से बड़े हुए थे. इनके लिए राम भगवान भी वही थे जो प्रॉफिट थे. He belonged to a secular family, you can see. One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our school. I used to wear a cap, वो जो मुस्लिम वाला कैप होता है, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri who wore the sacred thread. यहाँ पे sacred thread जो है जनेऊ बोलते हैं. I don't know how many of you know. जो ब्राह्मण्स होते हैं नॉर्मली देयर इज अ मतलब कि एक हमारे यहाँ एक फंक्शन होता है 4 years, 7 years, 11 years एंड देन बिफोर मैरिज वो जनेऊ डालते हैं. शादी से पहले वो 3 होता, बाद में वो 6 हो जाता है. दिस शोज दैट द पर्सन इज मैरिड. जैसे हम विमेन जो है दे वियर द मंगलसूत्र, ये सेक्रेट थ्रेड होता है फॉर द मेन जिसको हम जनेऊ भी बोलते हैं. आज बप्पा जी आते हैं तो उनको भी पहनाया जाता है, बप्पा जी को भी पहनाया जाता है, वो पहनते थे. एंड इट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस. हमारे यहाँ जब ये जो जनेऊ पहनाते हैं ना पूरी मैरिज होती है, सिर्फ एक लड़की नहीं होती है, बाकी पूरी सेरेमनी मैरिज जैसी होती है. एवरीथिंग A to Z, बस सिर्फ वो लड़की नहीं होती है उसमें. दैट फंक्शन इज सो 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 बिग. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक मतलब he could not tolerate a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना that the chapter deals about how a teacher should behave in accordance with our social ranking as a new teacher saw it. According to social ranking मतलब Muslims are considered bit low. I was asked to go and sit at the back bench. I felt very sad and so did Ramananda Shastri. भाई best friends थे. He looked utterly downcast. Downcast मतलब बेटा होता है यहाँ पर it is very depressed. जब वो बेचारे पीछे जा रहे थे. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. बहुत रो रहा था वो. After school we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri मतलब उसके जो father थे उसके summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent child. मतलब कि ये बताता है कि वो कितने broad minded थे. even though he was a priest, पंडित थे वो, उसके बावजूद उन्होंने उस टीचर को बोला कि आप बच्चों में ऐसे डिफरेंसेस नहीं लेकर आओगे. communal intolerance means difference between on the basis of religion. He bluntly asked the teacher either to apologize or quit the school and the island. यहाँ छोड़कर आप चले जाओ. Nor did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction. Conviction मतलब the opinion that the parent had given. Conveyed ultimately reformed the young teacher. और teacher को समझ आ गया that he should not discriminate the child on any kind of differences. बेटा कोई भी I also have felt so many मतलब कि difference when I was in the school and that I really feel that ऐसा difference teachers को कभी नहीं रखना चाहिए. A person may be beautiful, a person may be black, a person may be ugly. You need to only teach them. और आपको ये देखना कि आपके टीचिंग से उस बच्चे को कितना समझ आ रहा है. You are not a teacher if the child is not there. अब मैं टीचर कैसे कहलाऊंगी अगर आप लोग नहीं हो तो. I am not a teacher who is going to only start the Zoom and start talking. टीचर तब बनेगा जब बच्चे आपके सामने होंगे. बच्चे अगर आपको समझेंगे तो आप टीचर माने जाते हो. And a teacher should never discriminate anyone on any ground. Every child is unique and over the past 20 years I have really seen जिन बच्चों ने कभी जिनको स्कूल में बच्चे टीचर्स कहते थे you are nothing, they are now somewhere in the world. हर बच्चा अपना रास्ता खुद निकालता. बच्चे एक रिवर की जैसे होते हैं. The children are like rivers. They can
they can search their own path. रिवर अपना रास्ता खुद चूज करता है. So the marks or the social inequality will not matter. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Rigid मतलब वहाँ ये तो because that's a temple town, so थोड़ी rigidity, थोड़ा strictness रहता था. वहाँ पे लोग ऊंच नीच ये सब देखते थे. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin, was with a very conservative wife, was something of a rebel. लेकिन उनके जो साइंस के टीचर थे, मतलब वो उस टेम्पल टाउन में रहने के बावजूद जो उसके टीचर थे वो बहुत ही मॉडर्न थे. He was not a kind of teacher like others. उनकी वाइफ काफी कंजर्वेटिव थी, मतलब पुराने जमाने के सोच की थी. He did his best to break, बेटा best to break is here alliteration. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने हर वो कोशिश की जो ये social barriers हैं on the basis of their religion, on the basis of their caste और on the basis of the social status, उसको वो खत्म करे. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम्हें बड़े बड़े शहरों में जाकर उन लोगों की बराबरी करना है जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जैसे. He always dreamt that Kalam would become one of the best person in the world. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने इनको बुलाया. अब वाइफ ने जब देखा कि एक मुस्लिम आया है, she was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. इन हर रिचुअली प्योर किचन का मतलब होता है विच आर, मतलब जहां हम रिलीजन के अकॉर्डिंग सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तो नहीं इनको बिठाऊंगी, क्योंकि हमारे मतलब अभी पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो किचन में ही खाना खाते थे. आजकल हमारे पास डाइनिंग रूम एक्सेट्रा है, बट पहले लोग किचन में ही खाना खाते थे. सो दैट इज़ वाई शी वॉज वेरी पर्टिकुलर. Siva Subramaniam Iyer was not perturbed. Perturbed मतलब disturbed. Perturbed मतलब disturbed. Nor did he get angry with his wife. ना वो उन्होंने गुस्सा किया, ना वो कुछ हुए, ना वो डिस्टर्ब हुए. But instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. उनकी वाइफ ने देखा पीछे से. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग साफ करते हैं. देखा कि वो भी वैसा ही कर रहे हैं. When I was leaving his house, Siva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again and next weekend. उनका दोबारा आना. Observing my hesitation, उन्होंने बोला, अभी ये थोड़ा आनाकानी कर रहे थे कि भाई आपकी वाइफ को पसंद नहीं आ रहा. Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. आपको ऐसे problems का सामना करना पड़ेगा. Confronted मतलब सामना करना पड़ेगा. When I visited his house the next week, Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands.
Then that's the second teacher who had made the difference. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. मतलब होना ही था. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with unprecedented optimism, means positivity. Everyone was sure कि होने वाला है. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram, थोड़ा आगे. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? Seagull is a bird and it grows alone. हर बच्चे को एक ना एक दिन अकेले अपनी ज़िंदगी को देखना पड़ता है. उनकी जो मदर थी वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी. मदर तो मदर है. ही कोटेड खलील गिब्रान. उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने जो ये कोटेशन, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. दे कम थ्रू यू. आप उन्हें पैदा करते हो बट नॉट फ्रॉम यू. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स. आप उनको अपने थॉट्स उन पर थोप नहीं सकते हो. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. उनके अपनी खुद थॉट्स होते हैं और उन थॉट्स को बड़ा करने के लिए यू शुड अलाउ देम. You should allow them to grow. You should allow them to fly. You should allow them to explore the world on their own. और ये कहकर उन्होंने अपने बच्चे को जो है बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया. बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम रामेश्वरम डिड नॉट हैव मेनी स्कूल्स. अभी भी ऐसा स्कूल्स या कॉलेजेस आपको वहाँ नहीं मिलता है. द पीपल हैव टू ट्रैवल टू द डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स फॉर द कॉलेजेस एंड ऑल. येस, द बेसिक सिस्टम इज देयर बट स्टिल इट इज व्हाट वी कॉल एज somewhat town, not a city. So this is the story of Dr. Abdul Kalam. In fact, he always said that I wanted myself to be remembered as a teacher. I never want that people should believe me as a doctor. Doctorate means scientist. लेकिन अगर मुझे कोई याद करना चाहता है तो द पर्सन शुड ऑलवेज रिमेंबर मी एज अ टीचर. इवन दो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस वॉज बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, द एटॉमिक सर्च इन आवर कंट्री. 1974 में जब आपका मतलब कि स्माइलिंग बुद्धा जो हमारा पहला जो आपका न्यूक्लियर फिशन हुआ था उसमें भी ही हैड बीन द वन. ही हैड असिस्टेड. अगर आपने मूवीज़ देखी हो तो उसमें भी आपको दिखेगा. पोखरान अगर आपने देखी है तो उसमें भी आपको उनका रोल दिखेगा. एट दैट टाइम ही वॉज एन असिस्टेंट बट इसमें उन्होंने पूरा खुद ही किया था. जो सेकेंड टाइम 1998 में हुआ था उनके अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में उसमें. सो ड्यू टू हिज विजनरी साइंस की विजनरी की वजह से ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007. Whereas he also was a teacher. He was also a teacher. He died on 27 July 2015. And it was really shocking for me because he was giving a speech. मतलब वो speech दे रहे थे शिलोंग में, I think to IITs or IIMs. He was standing on the podium. Suddenly he collapsed and died. And I was, मतलब कि जब मुझे ये न्यूज़ पता लगा, I was in the institute when I came to know, I was literally, मुझे ऐसा लगा कि yes, ऐसा ही होना चाहिए. Without giving trouble to anyone, he was teaching. उस वक्त में भी वो पढ़ा रहे थे and he died. So that is the greatness of that person I have always admired. So that is Dr. APJ Abdul Kalam.